अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ किरण खान। नाज़रीन, जर्नलिस्ट फाउंडेशन की जानिब से नेशनल प्रेस क्लब के 9 मुंतखब ओहदेदारान के एजाज़ में बारबेक्यू पार्टी का इनेकाद किया जा रहा है। आइए यहाँ मौजूद मेहमानान गरामी से गुफ्तगू करते हैं और जानते हैं पार्टी में मौजूद ये मेहमान इस हवाले से क्या कहते हैं। हमारे साथ रहिएगा। हमारे साथ मौजूद हैं PFUJ वर्कर्स की प्रेसिडेंट डॉक्टर सादिया कमाल साहिबा। इनसे जानेंगे आज ये जर्नलिस्ट फाउंडेशन की बारबेक्यू पार्टी में मौजूद थी, क्या कहना चाहेंगी? जी, जर्नलिस्ट फाउंडेशन हमेशा से बहुत ही अच्छा काम करता रहा है और हमारे इस्लामाबाद रावलपिंडी में इसका जो एक तशख़्ख़ुस है वो बहुत ही मुस्बत है। वो हमेशा जो जर्नलिस्ट कम्युनिटी है उनकी दुख हो तकलीफ़ हो उसमें भी साथ साथ रहते हैं और उसके अलावा ये अपने जो साथी हैं उनको इंटैक्ट रखते हैं इकट्ठे। और अक्सर ये होता है कि देखें आजकल के इस दौर में जिस तरह की अफरा तफरी है, हम लोग एक दूसरे के साथ बैठते नहीं हैं, बात नहीं करते, लेकिन ये जर्नलिस्ट फाउंडेशन का बहुत अच्छा है कि ये अपने साथियों को साथ अपने इस फोरम के साथियों को ले जाते हैं, आउटिंग पे ले जाते हैं। और ख़ास तौर पर आज जो इधर कंवल झील लोक विरसा में बारबेक्यू का एहतमाम किया गया है और नेशनल प्रेस क्लब की क़यादत भी यहाँ पर आई है, तो ये बहुत अच्छा है। क्योंकि मैं यही बात अभी जो फाइनेंस सेक्रेटरी आबिद अब्बासी साहब उनसे भी कह रही थी और इससे पहले सदर और सेक्रेटरी भी यहाँ पे आए थे। मैंने कहा कि देखो हम आम तौर पे ज़िंदगी में इतने मसरूफ़ हो गए हैं कि हम मिल ही नहीं पाते। अब आप ये देखें कि यहाँ पर आए हैं तो बहुत सारी ऐसे साथी हमें जिनसे हम कितने अरसे बात ही नहीं कर पाते, तो उनसे आके हमें मिल बैठने का मौका मिला और मिल बैठने का मौका भी ख़ास तौर पर खाने में मिला है। और खाने में भी अब टिक्का पार्टी थी तो वो कितना अच्छा है। तो मैं ये समझती हूँ कि आज के इस दौर में ये काम करना भी एक बहुत अच्छा और एक सेहतमंदाना एक्टिविटी है। ये सिर्फ महज ये नहीं है, हम कहते हैं कि एक तफरी है कि आप लोग गए हो और तफरी की है। और ये जो सरसब्ज़ हमारा यहाँ पर ये कंवल झील का ये जो लोक विरसा में पार्क है,
یہ صرف محض اس پہ نہیں ہے بلکہ آپ نے بہت سارے لوگوں کو جرنلسٹ فاؤنڈیشن نے جوڑا ہے، مل بٹھایا ہے. ہم بہت سارے حال احوال ہمارے ابھی ہم یہاں پر کچھ پریس کلبز کے ایشوز بھی تھے، ہم اس میں بھی ایک دوسرے کے ساتھ بات کر رہے تھے ایک اچھے سے ماحول میں. تو جرنلسٹ فاؤنڈیشن کا بہت شکریہ، رفاقت حسین صاحب کا بہت شکریہ کہ وہ اس موقع پہ بھی ہمیں یاد کرتے ہیں، ہمیں آنر دیتے ہیں، اور اسی طرح سے جرنلسٹ فاؤنڈیشن چلتی رہے، شاد آباد رہے. تھینک یو. بہت شکریہ جی. آج آپ نے پھر جرنلسٹ فاؤنڈیشن کی جو تکا پارٹی ہے اس میں آپ نے پھر مجھے نب کچھ کا موقع دیا آج، کیونکہ یہ اسپیشل پارٹی تھی. ہمارے پریس کلب کے عہدیداران جو ہیں وہ 9 منتخب عہدیداران ان کے اعزاز میں یہ منعقد کی گئی تھی، جس میں جناب صدر صاحب، سیکرٹری صاحب، فائنانس سیکرٹری صاحب اور دیگر ہمارے ساتھی تشریف لائے ہیں، اور باقی جرنلسٹ فاؤنڈیشن کے جو ممبران ہیں، عہدیدار ہیں، وہ لائے ہیں، تشریف لائے ہیں. سب کا میں تہ دل سے مشکور ہوں کہ انہوں نے اپنی مصروفیات ترک کر کے یہاں جرنلسٹ فاؤنڈیشن کی اس تقریب کو جو ہے 4 چاند لگائے ہیں. اور یہ سلسلہ سب ساتھیوں کو پتہ ہے کہ ہم گائے بگائے یہ کرتے رہتے ہیں. اور لاسٹ میں کیا کہنا چاہیں گے؟ لاسٹ میں یہی ہے کہ ابھی چونکہ صحافیوں پہ اس وقت کڑا وقت ہے، مصروفیت ان کی زیادہ ہیں، لیکن اس طرح کی جو ایکٹیویٹی ہوتی ہیں وہ ان کی جو ذہنی تناؤ ہے اس کو کم کرنے میں بڑا اہم کردار ادا کرتی ہیں. تو جرنلسٹ فاؤنڈیشن ہمیشہ صحافیوں کی فلاح و بہبود اور ان کی انٹرٹینمنٹ کے لیے مختلف پروگرام کرتی رہتی ہے. یہ سلسلہ جاری ہے اور آئندہ بھی جاری رہے گا. بہت شکریہ کرن آپ کا کہ آپ نے اس وقت اور اس موقع پہ یہ پلیٹ فارم فراہم کیا ہے. جرنلسٹ فاؤنڈیشن روز اول سے ہی صحافیوں کی بیٹرمنٹ کے لیے کام کر رہی ہے. اب جیسا کہ دیکھیں کل عالمی یوم صحافت کا دن ہے، 3 مئی جو ہوتا ہے وہ ہے، اس کے لیے اس کی جو منصوبہ بندی ہے وہ شروع دن سے اسی طرح چل رہی ہے. پھر اس کے بعد جو جرنلسٹ فاؤنڈیشن میں جو کردار ہیں، مرکزی کردار ہیں، ملک ذوالفقار ہیں، عامر محبوب ہیں، رفاقت صاحب ہیں اور دوسرے دوست ہیں، ان سب کا کردار کلیدی کردار ہے. آپ لوگ ہیں، آپ بھی اس کا حصہ ہو. آپ کا ایک بہت اچھا کلیدی کردار ہے آپ کا، اور صحافیوں کی بہتری کے لیے، صحافیوں کے مسائل کا اجاگر کرنے کے لیے نہ صرف، بلکہ ان مسائل کے حل کا تدارک کرنا اور ان مسائل کو ختم کرنا، حل کرنا اور صحافی کے اس کے ڈور سٹیپ پہ پہنچانا، یہ سب سے بڑا جو ہے وہ ایک کریڈٹ کہہ دیں اس کو کہ وہ جاتا ہے جرنلسٹ فاؤنڈیشن کو. اسلام آباد راولپنڈی میں بہت ساری تنظیمیں ہیں، ینگ جرنلسٹ ایسوسی ایشن، پتہ نہیں اولڈ جرنلسٹ ایسوسی ایشن، فلاں ریجنل، علاقائی، پٹوار، بہت ساری ہیں، لیکن جو جرنلسٹ فاؤنڈیشن کا کردار ہے اس کے سامنے کسی کا کوئی نہیں ہے. لوگ آتے ہیں، اپنے تعارف کرواتے ہیں، اپنے ذاتی مفادات حاصل کرتے ہیں، چاہے اس کے عہدیدار ہے، یہاں تک کہ پریس کلب میں تنظیمیں بنی ہوئی ہیں. اس کے علاوہ ایسا ہی ہے، تمام تنظیمیں اپنی جگہ پر کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی کام جو سر انجام دے رہی ہیں، لیکن یہاں پر میں، کیونکہ آج کا ہمارا خاص موضوع اور خاص موقع یہ ہے کہ جرنلسٹ فاؤنڈیشن جو ہے یہ نہیں دیکھتی کہ کون سی پارٹی ہے، کون کس پارٹی سے تعلق رکھتا ہے، وہ سب کو ایک ساتھ یہاں پر جو ہے نا ایک جگہ پر اکٹھا کرتے ہیں. تو اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ بالکل، اس میں یہ کہوں گا کہ یہ چونکہ ان کی عید ملن پارٹی تھی جو کہ تھوڑی سی اسلام آباد ٹاکس کی وجہ سے لیٹ ہوئی، اور اس میں دیکھ لیں آپ کہ آج جو تھے پریس کلب کے، چاہے وہ اپوزیشن کے لوگ ہیں، چاہے وہ حزب اقتدار کے لوگ ہیں، وہ بھی یہاں پر موجود تھے. یونینز، RIUJs کے جو ہیں وہ اقتدار والے بھی اور حزب اختلاف والے بھی، وہ بھی یہاں پہ موجود تھے. فار ایگزامپل آپ کسی کا نام کہتی ہیں تو میں لے لیتا ہوں کہ عابد عباسی صاحب ہمارے فائنانس سیکرٹری ہیں، وہ بھی آئے ہوئے تھے. دوسری طرف سے سعدیہ کمال ہیں، وہ بھی آئی ہوئی تھی، وہ RIUJ اس کی ورکرز کی وہ صدر ہیں. جبکہ دوسری طرف RIUJ ورکر جو ہے پرویز شوکت گروپ، اس کا میں جنرل سیکرٹری ہوں. لیکن ہم یہاں بیٹھ کے ہم نے انجوائے کیا، گپ شپ لگائی، اچھی باتیں کی، صحافیوں کے بارے میں باتیں کی. وہ اختلاف ہمارا کوئی نہیں. جرنل فاؤنڈیشن ایک ایسا ہے کہ جو اختلاف سے بالا تر ہو کے تمام کو اکٹھا کرتا ہے، کر کے ان کو اجاگر کرتا ہے، ان صحافیوں کے مسائل کو. ساتھ موجود ہیں کمیونیکیشن ڈائریکٹر مینا لوتھر صاحبہ. آج ان سے جانتے ہیں کہ باربیکیو پارٹی میں یہ آج ایز اے گیسٹ آئی ہیں، کیا کہنا چاہتی ہیں اس حوالے سے، اور خاص طور پہ آج اسپیشل ٹائم نکال کر آئی ہیں. تو
जी मीना जी क्या कहेंगी? जी थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा लग रहा है। ये एक तो व्यू बहुत ज़बरदस्त है, बहुत प्यारा व्यू है और रिफ़्रेशमेंट वो लगती है, इंसान माइंड जो है फ्रेश हो जाता है। और ये जानकर आपको हैरानगी होगी कि मैं बलूचिस्तान से इस टाइम आई हूँ, बलूचिस्तान कोयटा से। मैंने बिल्कुल नाज़रीन को इसलिए बता दिया कि स्पेशल टाइम निकाल कर आए। एग्जैक्टली तो ये होता है कि देखिए जब हम इंसानी हकूक़ पे काम करते हैं, क्योंकि मैं इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स मूवमेंट के उसे प्लेटफॉर्म से हूँ, तो जब इंसानी हकूक़ पे आप काम करते हैं तो फिर आपके टाइम अपना नहीं होता, वो टाइम फिर आवाम का होता है, क्योंकि हम लोग आवाम के लिए हैं, हम उनके मुलाजिम हैं, तो वो उनके लिए जो टाइम है तो हमें निकालना पड़ता है। और मसरूफ़ियत होती है, बट इस मसरूफ़ियत को फिर हमें उनको देना पड़ता है। ऐसा ये क्या कहना चाहेंगी, जर्नलिस्ट फाउंडेशन की इस पार्टी में आप मौजूद हैं, ख़ास तौर पर आपको बुलाया गया है, यहाँ पर सदर साहब, सेक्रेटरी साहब ने सारे इंतजामात किए हैं और टीम के काफ़ी मेंबर जो है एक्टिव दिखाई दे रहे हैं, क्या कहेंगे? इनके लिए मैं बहुत प्लेजेंट फील कर रही हूँ, क्योंकि इस स्ट्रेस वाले माहौल में और कवरेज करना, इतने स्ट्रेस वाले माहौल में जाकर इतनी जैसे ब्लास्टिंग ये वो सब चीज़ें होती हैं, उसमें जाकर कवरेज करने के बाद ये थोड़ा सा इन्वायरमेंट जो जर्नलिस्ट हैं उनको चाहिए, ताकि वो ख़ुद को फ्रेश करें। वो फ्रेश करेंगे तो दुनिया जो है मज़लूम्स की आवाज़ बनेंगे और उनके इश्यूज़ को हाईलाइट करेंगे, गवर्नमेंट तक पहुँचाएँगे, सरकार तक पहुँचाएँगे, तो जाकर ये इश्यूज़ सॉर्ट आउट होंगे। नाज़रीन हमारे साथ मौजूद हैं इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स के स्पोक्स पर्सन राजा उमर ख़ान साहब, आज इस पार्टी में मौजूद हैं, इनसे जानेंगे कि ये क्या कहना चाहते हैं। जी क्या कहना चाहेंगे, ख़ास तौर पर जर्नलिस्ट फाउंडेशन ने जो आज एहतमाम किया है, सब सहाफ़ी दोस्तों को इकट्ठा किया और दीगर शोबों से यहाँ पर हमारे जो है साथी मौजूद हैं, काफ़ी इंजॉय करते दिखाई दे रहे हैं। जी सबसे पहले मैं जुल्फ़कार अली मलिक साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स मूवमेंट के स्पोक्स पर्सन को इनवाइट किया है। मैं नुमाइंदगी कर रहा हूँ इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स मूवमेंट की और डायरेक्टर भी हूँ वर्ल्ड मीडिया सेल IHRM का। तो बहुत खुशी हुई है कि जुल्फ़कार अली मलिक साहब माशाल्लाह मरकज़ी सदर भी हैं और तमाम सहाफ़ियों से मुलाकातें हुई हैं और ये गेट टुगेदर होनी चाहिए। ये क्योंकि फ्यूचर में जो सहाफ़ियों के साथ ज़्यादती होती है तो आपस में ये या उनके ऊपर केसेस बनते हैं या तो ऐसा भी तो होता है कि सहाफ़ी जब आवाज़ उठाते तो उनकी आवाज़ को भी दबा दिया जाता है। जी तो ये गेट टुगेदर आपस में अच्छी होनी चाहिए और हम इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स भी इसी मकसद के लिए यहाँ मौजूद है और यकजहती का इज़हार कर रही है सहाफ़ियों के साथ कि अगर इनके साथ किसी के साथ भी कोई अगर नाजायज़ ज़्यादती की गई तो हमारी इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स मूवमेंट और वर्ल्ड चेयरमैन राना बशारत अली ख़ान के विज़न के मुताबिक इनके साथ फुली हम खड़े हैं, एंड तक खड़े हैं। और जो भी अगर किसी किस्म का झूठे ये जो पर्चे किए जाते हैं, ठीक है, तो हम उनके पीछे तक जाएंगे इंशाल्लाह। टिक्को का जायका कैसा लगा? ज़बरदस्त जी, माशाल्लाह जी। सब हमारे जितने भी हमारे जर्नलिस्ट फाउंडेशन के जो दोस्त हैं जो अब यहाँ पर मौजूद थे, इन सब का आज हमारा, क्योंकि साल में ये 2 दफ़ा जो है ना हम इस तरह का प्रोग्राम करते हैं ताकि हमारे तमाम दोस्त अब मिलें, एक दूसरे के साथ बैठें और एक अच्छी जो है ना वो एक खुशगवार से एक मुलाकात हो, क्योंकि आजकल मसरूफ़ियत का दौर है। आपको पता है कि टाइम मिलना, टाइम निकालना बहुत मुश्किल है जी। हमारे लिए हमारे जो सहाफ़ी हज़रात हैं, जो हमारे सहाफ़ी भाई हैं, जो हमारे जो को वर्कर्स हैं, इनको एक हम आपस में एक गैदरिंग का एक माहौल पैदा करते हैं ताकि सब बैठें। ये तो सिर्फ बहाना होता है। बारबेक्यू पार्टी बिल्कुल एक बहाना है और मैं ये कहना चाहूँगी कि हम यहाँ पर बहुत सारे लोग अभी भी हमारे साथ मौजूद हैं, आ भी रहे हैं और काफ़ी एक माहौल बना है, मौसम भी चेंज हो रहा है। तो क्या कहना चाहेंगे, इस वक्त यहाँ मौजूद हैं आप, कैसा लग रहा है आपको? बहुत ज़बरदस्त लग रहा है जी। तमाम माशाल्लाह जी हमारे मेहमान जो हैं बड़े खुशगवार माहौल में, खुशगवार लोकेशन पर, बड़ी अच्छी खूबसूरती के साथ जनाब हम इस वक्त इस पार्टी को एंजॉय कर रहे हैं और पार्टी इस वक्त चल रही है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो नेक्स्ट प्लानिंग है वो इंशाल्लाह इस बकरा ईद के बाद इंशाल्लाह फिर हम एक पार्टी रखेंगे, इसमें हमारे अपने तमाम दोस्त अब आपको बुलाएंगे और सब फिर इंशाल्लाह एंजॉय करेंगे।